Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum class 9. Welcome back to another computer lecture. I am your instructor Anika Muzammal. As you all know, we have started chapter number 3, which is basically the title of chapter 3 is Office Automation, and previously you must have learned in the previous lecture that what we are going to study in this chapter, they are basically a list of some application software, and we will learn some practical work of these application software, which will also be included in your final exam, in your final board exam. So let's begin with today's lecture. Today we are going to learn about the software which is called MS Word. It is also known as a word processor. So let me explain what we are going to learn. We will learn some basic details of MS Word, like why do we use MS Word, what kind of software it is, what facilities it provides us, like what kind of documents we do create using MS Word software. And moreover, we will see a little bit practical demonstration of MS Word as well, like the basic controls MS Word software has. So let's start. MS Word is also known as word processing. It refers to creating the different documents. Like you can create a document, you can edit that document, you can change its format. Format is basically the design of that document or the text style, and the basic changing in the design, and you can print that document as well. So MS Word is an application software. You must recall the definition of application software, but before that, we must know what a software is. Software क्या होता है? It is a set of instruction that is given to the computer to perform a specific task, and we have studied the types of software as well. If you remember, there are two types of software: application software and system software. So we have learned that system software basically that runs your system, which includes Windows and other which is also known as operating system, and the rest one was application software. And we have studied that application softwares are used to perform some specific tasks which they are being designed for. जिन कामों के लिए वो application software design किए जाते हैं, they basically perform those tasks. So MS Word is also an application software. It is used to create documents letters and books. जैसे आप लोगों के पास ये जो बुक्स कंप्यूटर की जैसे बनी होती हैं किसी भी सब्जेक्ट के ग्रुप्स, तो वो जिस सॉफ्टवेयर के अंदर लेट्स सपोज अगर उनको डिजाइन किया जाता है, या सिंपल जो लेटर्स हैं या कोई भी एक आपको जैसे नोटिस कोई पढ़ने को मिलता है स्कूल में या कॉलेज में, जैसे वो डिस्प्ले हुए होते हैं, तो बेसिकली वो डॉक्यूमेंटेशन या कोई परफॉर्मा आपको दिया जाता है। तो इस तरीके के जो काम होते हैं हमारे पास वो MS वर्ड में किए जाते हैं. We can create such documents, we can print such documents as well. So it allows us to even delete, modify means to change and rearrange. Like you can arrange the position of text, like आप लोग paragraph की changes कर दें, ये चीज़ पहले आनी चाहिए, ये बाद में आनी चाहिए. That is basically the rearranging of that document. Modifying means editing that document. उसके अंदर कोई text आपने लिखा हुआ है, आप उसको delete कर रहे हैं, आप उसकी जगह कोई नया text enter कर रहे हैं. So you don't have to retype any of existing data if you are using MS Word. देखें, अगर हम लोग कंप्यूटर के अंदर कोई भी अगर एक टेक्स्ट लिखते हैं, ठीक है, अगर हमें उसका स्टाइल चेंज करना पड़ता है तो हमें उसको चेंज करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ती है. MS Word makes you enable to edit the same text without retyping it. आप अगर अपनी कॉपी पे भी अगर रफली आप कोई चीज़ लिखेंगे, अगर वो गलत हो जाती है, ठीक है, या आप उसका स्टाइल चेंज करना चाह रहे हैं, तो उसी चीज़ को आपको दोबारा लिख के उसका स्टाइल चेंज करना होगा जिस स्टाइल में आप उसको लिखना चाह रहे हैं. जबकि MS Word में आपके पास, बिकॉज ये इट इज़ अ टेक्नोलॉजी, ये कंप्यूटर है, तो इसके अंदर हमारे पास जो भी हम टेक्स्ट लिखेंगे उसको हम कॉपी पेस्ट करके भी और उसको वहीं पे लिखे लेके हम उसके मल्टीपल डिज़ाइन, उसका कलर एक से दूसरा कलर उसका कर सकते हैं. मैं थोड़ा सा आप लोगों को इसकी एक्सप्लेनेशन प्रैक्टिकल वर्क भी दूंगी एक्सप्लेनेशन के साथ साथ. आप लोग ऑल्दो दैट वुड बी इंक्लूडेड इन योर नेक्स्ट लेक्चर, लेकिन हम उसका थोड़ा सा प्रैक्टिकल भी देखेंगे. So, अभी तक हमने MS Word के बारे में क्या पढ़ा है? इट इज़ अ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर. एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जिसके ऊपर हम क्या करते हैं? वी क्रिएट, we edit, we print the document, we can even modify that document. यानी उसके अंदर हमने जो already existing text लिखा हुआ है उसको delete करके कुछ और text उसकी जगह add कर सकते हैं. We can rearrange that document, उसका design भी हम जो है वो change कर सकते हैं. We can even delete that document. So it provides us so many other features as well. आप लोग सिर्फ
इसके अंदर सिंपल डॉक्यूमेंट्स नहीं क्रिएट कर सकते, यू कैन क्रिएट सम प्रोफेशनल डॉक्यूमेंट्स एज वेल। जैसे आप लोग रिपोर्ट्स, रिज्यूमे, न्यूज़ लेटर, मेमोज, फ्लायर्स, जैसे वो पम्पलेट्स वगैरह भी अगर आपके पास, अगर आपने देखे हों, आप लोगों को अगर अपने कॉलेज का न्यूज़ लेटर अगर याद हो, दैट डिज़ाइन कैन ऑल्सो बी क्रिएटेड यूजिंग MS Word सॉफ्टवेयर। सो इट इज़ बेसिकली वेरी क्रिएटिव सॉफ्टवेयर। सिंपल आपको इसके कमांड आनी चाहिए that how to use this software. You can do the simplest to most complicated task using this software. So you can create letters, reports, you can write your resume, you can write different memos, you can design different stuff using MS Word software. So it doesn't only provide to create a document, it provides the facility to create appealing professional documents which can look attractive, जिनको देख के हमें उनका डिज़ाइन देख के, कुछ डॉक्यूमेंट्स तो ऐसे कोई फ्लायर्स वगैरह भी या जो पम्फलेट्स वगैरह भी हम देखते हैं तो उसके ऊपर जो डिज़ाइन होता है दैट मेक्स दैट डॉक्यूमेंट अट्रैक्टिव कि हम उसको पढ़ते हैं। सो सच काइंड ऑफ डॉक्यूमेंट्स कैन ऑल्सो बी क्रिएटेड यूजिंग MS Word software. And what MS Word is, it is also known as word processing and it is application software. So here is the control picture of MS Word software. यहाँ पे आप लोगों को चीज़ें थोड़ी सी blur नज़र आ रही होंगी, but do not worry. Let's get back to some practical work. मैं आपको practically, चलिए इस slide को मैं explain कर लेती हूँ. Then I will move to the practical demonstration of these steps by opening MS Word software. Here you can see, ये आपके पास ये जो window नज़र आ रही है. Let me highlight this area so that it can get more clear to you. जैसे ये आपको एक विंडो नजर आ रही है. सॉरी अबाउट the correction, I cannot draw precise lines because माउस के साथ ऐसा ही होता है. ये आपके पास MS Word की डॉक्यूमेंट है. इसके अंदर आपको ये ऊपर कंट्रोल्स नजर आ रहे होंगे. these controls, these names are these are the names of the controls that are being included in MS Word document. यहाँ पे जैसे ये ऊपर वाली ये बात जो आपको नजर आ रही है, let me highlight this with another color ताकि आपको सही से ये जो आपको एरिया नजर आ रहा है, that is your quick access tool bar. क्विक एक्सेस टूल बार, ये आपके पास जो है वो ये तमाम एरिया जो है, ये वाला सारा एरिया जो मैं अभी कवर कर रही हूँ ग्रीन से, दिस इज बेसिकली कॉल्ड रिबन. And there are some basic controls like, let me use another pen. ये जो आपको नजर आ रहे हैं, ये तीन कंट्रोल्स, ये आपके पास मिनिमाइज करने के लिए, रीस्टोर करने के जो क्लोजिंग बटन्स हैं, ये आपके पास वर्टिकल टूल बार है. और ये आपके पास जो मेन जहाँ पे नाम लिखा हुआ आ रहा होता है वो डॉक्यूमेंट का टाइटल बार कहलाता है. दिस एरिया इज बेसिकली योर ब्लैंक डॉक्यूमेंट, जहाँ पे आप अपनी मर्जी से कोई भी टेक्स्ट लिखते हैं. ये एरिया आपके पास स्टेटस बार कहलाता है. इनको अभी हम पढ़ेंगे, ये कोई एक्सेस टूल बार क्या है, रिबन क्या है, वर्टिकल स्क्रॉल बार्स क्या है. ठीक है, ये आपके पास जूम इन एंड जूम आउट बार है. ठीक है, अभी हम क्या करते हैं कि इसकी हम थोड़ी सी प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन देख लेते हैं. सो लेट्स सी व्हाट MS Word इज बेसिकली. उसके हम इन कंट्रोल्स को प्रैक्टिकली देखते हैं. ठीक है, ओके. सो यहाँ पे आपने अपने सिस्टम के अंदर यहाँ पे MS Word कैसे ओपन करना है, अगर आपने रिसेंटली उसको ओपन किया हुआ है तो आपको यहाँ पे शो हो रहा होगा. अदरवाइज यू कैन जस्ट टाइप और सर्च फ्रॉम हियर. तो यहाँ पे Word 2013, दिस इज बेसिकली विंडोज 10, ये विंडोज 10 का इंटरफेस है. यहाँ पे मेरे पास MS Word शो हो रहा है, इसको मैंने ओपन किया. तो MS Word में अब हम इसके कंट्रोल को यहाँ पे क्लियरली देख सकते हैं. स्लाइड में आपके पास इतना क्लियर नजर नहीं आ रहा है. ओके, तो वहाँ पे आप लोगों को ये जो कुछ एरियाज नजर आ रहे हैं, जैसे ये ऊपर टाइटल, ये जो बार है, अगर आप लोगों के पास बुक है तो आई वुड सजेस्ट यू गाइस टू प्लीज कीप योर बुक विद यू, तो आप लोगों को सही से समझ आएगी. स्लाइड में ये वाला एरिया जैसे यहाँ पे आप लोगों को नजर आ रहा है, ये एरिया, ये क्विक एक्सेस टूल बार कहलाता है. तो ये जो आपके पास कंट्रोल है, जहाँ पे ये आपको फ्लॉपी बनी हुई नजर आ रही है, ये आपके पास क्विक एक्सेस एरिया टूल बार है.
ये आपके पास जो है ये टाइटल बार है, जहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट 1 लिखा हुआ नजर आ रहा है। डॉक्यूमेंट 1 इज बेसिकली द टाइटल ऑफ योर डॉक्यूमेंट, ठीक है। ये जितना एरिया है हमारे पास, जिसके अंदर ये सारी चीज है, ठीक है, जिसके अंदर ये आपको तमाम ऑप्शंस नजर आ रहे हैं, ये तमाम, ये रिबन कहलाता है, ठीक है। इसके अंदर ये डिफरेंट टैब्स होती हैं। रिबन की जब हम आगे डेफिनेशन पढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि वो टैब्स जो हैं वो क्या कितनी किस्म की टैब्स हैं, ठीक है। यहाँ से भी अगर आप लोगों को नजर आ रहा हो, होम, इंसर्ट, डिजाइन, पेज लेआउट, रेफरेंस, मेलिंग, रिव्यू एंड व्यू, दीज टैब्स आर इंक्लूडेड इन रिबन। तो ये आपके पास रिबन एरिया होता है, ठीक है, रिबन कहलाता है। ये आपके पास जो है ना वो बटन है, ये मिनिमाइज के लिए, लेट सपोज अगर इसको मैं क्लिक करूंगी तो डॉक्यूमेंट मिनिमाइज हाइड होगी है, ठीक है। तो यहाँ पे ये नीचे टास्क बार होती है, इसके ऊपर हाइड होगी, इसको मैंने दोबारा ओपन कर लिया। ये उसको मैक्सिमाइज करने के लिए, मतलब उसको रीसाइज करने के लिए, ठीक है। एंड दैट बटन इज यूज्ड टू क्लोज द डॉक्यूमेंट, ठीक है। इसको अगर हम क्लिक करेंगे तो डॉक्यूमेंट हमारे पास क्लोज हो जाएगी, ठीक है। ये बेसिक कंट्रोल्स हैं जो कि हमें पता होने चाहिए। ये आपके पास ब्लैंक डॉक्यूमेंट है, वर्किंग एरिया। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे जब कर्सर आ रहा है तो उसकी शेप चेंज हो रही है और यहाँ पे वो पॉइंटर में कन्वर्ट हो रहा है। सो दिस साइन इंडिकेट्स दैट यू कैन स्टार्ट टाइपिंग फ्रॉम हियर, लाइक आई वुड लाइक टू राइट हेलो, आई एम राइटिंग, आई एम, let's suppose, using this software for the very first टाइम, ठीक है। इस तरीके से आप उसके ऊपर टेक्स्ट लिख के, इसके हम आगे बेसिक डिटेल्स भी देखेंगे कि हम किस तरीके से इसको एडिट वगैरह कर सकते हैं, ठीक है। ये जो एरिया है आपके पास, ये आपके पास स्टेटस बार कहलाती है, ठीक है, जिसके अंदर आपके पास शो हो रहा होता है कि हमारे डॉक्यूमेंट में कितने पेजेस हैं। अभी हमारे डॉक्यूमेंट में एक ही पेज है तो वो पेज 1 of 1 शो कर रहा है। अगर हम यहाँ से मैं इंसर्ट करके एक और ब्लैंक पेज इंसर्ट करती हूँ तो नाउ इट कैन, you can see that it is showing page 2 of 2, that we are on page number 2 and total pages in this document are basically 2. अब मैं अगर page 1 पे move करती हूँ तो it will show page 1 of 2, that it file contains 2 pages। इस document के अंदर 2 pages हैं और हम अभी page 1 के ऊपर हैं। And this status bar show the next characteristics of a status bar is basically showing the number of words a document contains। तो अभी हमारे पास इस टोटल डॉक्यूमेंट में कितने वर्ड्स हैं, दैट इज 11 वर्ड। तो अगर आप इस डॉक्यूमेंट में जितने भी वर्ड लेट्स सपोज एंटर करते हैं, पेजेस एंटर करते हैं, ठीक है, जो भी आपके पास टेक्स्ट ऐड करते हैं, तो उसका तमाम स्टेटस आप यहाँ से देख सकते हैं। दिस इज द वर्टिकल स्क्रोल बार। अगर हम प्रेजेंटेशन पे जाएं तो हमें यहाँ पे नजर आ रहा है, दिस इज वर्टिकल स्क्रोल बार। वर्टिकल स्क्रोल बार क्या करती है कि जैसे हम डॉक्यूमेंट को अपसाइड डाउनवर्ड्स जो है वो मूव कर सकते हैं, और यहाँ पे आपके पास जो है वो हॉरिजॉन्टल होती है। इफ यू इंक्रीज द साइज ऑफ डॉक्यूमेंट तो यहाँ पे हमें शो हो जाएगी। ये आपके पास जो है, यहाँ पे हमने क्या देखा था, जूम इन एंड जूम आउट बार है, दैट इज यूज टू enlarge और डिक्रीज द साइज ऑफ योर पेज। अगर हम इसको क्लिक करते हैं तो हमारे पास पेज का साइज जो अभी देखें 130%, 190%। अब देखिए मेरे पास जो है हॉरिजॉन्टल स्क्रोल बार भी शो होगी क्योंकि मेरे पास डॉक्यूमेंट का साइज जो है वो बड़ा हो गया। तो नॉर्मली हमारे पास जो डॉक्यूमेंट का साइज रखा जाता है वो 100% रखा जाता है। तो यहाँ से हम डॉक्यूमेंट का व्यू भी चेंज कर सकते हैं। सो लेट्स गेट बैक टू द लेक्चर which was about MS Word। तो आई होप कि आप लोगों को ये जो कंट्रोल्स यहाँ पे थोड़े ब्लर नजर आ रहे हैं, जो प्रैक्टिकली मैंने आपको दिखाए हैं वहाँ पे आपको नजर आ गए होंगे। एक दफ़ा और हम देख लेते हैं कि हमने MS Word में आज क्या पढ़ा है, इसके हमने क्या फीचर्स देखे हैं, जो इसके कंट्रोल्स हैं। ये हमारे पास क्विक एक्सेस टूल बार है, ये हमारे पास टाइटल बार है, ये सारा एरिया हमारे पास रिबन कहलाता है। दिस इज योर ब्लैंक डॉक्यूमेंट, दिस इज द वर्टिकल स्क्रोल बार, दिस इज द स्टेटस बार विच शोज कितने पेजेस हैं और हमारे पास कितने नंबर ऑफ words हैं, and this is the zoom in and zoom out area from where you can adjust the size of your page। So let's get back to the lecture। हमने देख लिए MS Word के ये कंट्रोल्स। ओके, अब वर्ड विंडो के अंदर हमने अभी जो देखा है कि वर्ड के अंदर कौन कौन से ऑप्शंस हमारे पास, कौन कौन से कंट्रोल्स मौजूद है। हमने क्विक एक्सेस टूल बार देखा है, उसके अलावा हमने क्या देखा है, रिबन देखा है, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल स्क्रॉल बार देखी है और स्टेटस बार। अब क्विक एक्सेस टूल बार क्या होती है कि ये हमारे पास कहाँ पे हमारे पास डॉक्यूमेंट में थी, टॉप लेफ्ट कॉर्नर में। और इससे हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे आपके पास बेसिकली जो
वो ऑप्शंस मौजूद होते हैं जो आप फ्रीक्वेंटली यूज कर रहे होते हैं, जैसे एमएस वर्ड के अंदर हम सेव बार बार कर रहे होते हैं, हम अनडू रीडू कर रहे होते हैं। होप आपको अनडू और रीडू का पता होगा। लेट्स सपोज कि अगर आप कोई चीज जो है वो गलत हो जाती है तो हम उसको अनडू करेंगे तो वो आपके पास इफेक्ट रेज हो जाएगा, या गलती से कोई चीज अगर आपके पास से डिलीट हो जाती है तो उसको रीडू करके वी कैन ब्रिंग बैक दैट टेक्स्ट, ठीक है। तो उसके साथ हमारे पास मैं अभी आप लोगों को दिखा देती हूँ। तो जो हम फ्रीक्वेंटली द ऑप्शंस वी यूज फ्रीक्वेंटली आर अवेलेबल और प्रेजेंट इन द क्विक एक्सेस टूल बार, यू कैन कस्टमाइज दैट सेटिंग। आप वहाँ पे अपनी मर्जी से अपनी मर्जी के मुताबिक टूल्स जो है वो उसके अंदर आप ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे जैसे मैं आप लोगों को दिखाती हूँ एमएस वर्ड में जो हमारे पास ये सेव का है, यहाँ फाइल से भी आपके पास सेव का ऑप्शन आता है, ठीक है। फाइल को क्लिक करने से भी सेव का ऑप्शन आता है, लेकिन अगर मैं फ्रीक्वेंटली यूज कर रही हूँ तो क्विक एक्सेस टूल बार में मुझे मजीद किसी ऑप्शन पे आगे क्लिक करने की जरूरत नहीं है। मैं यहाँ से डायरेक्टली इस डॉक्यूमेंट को सेव कर सकती हूँ। दिस इज अनडू, ठीक है। अगर मैं इसे अनडू करती हूँ तो जो देखें जो लास्ट टाइम मैंने वो टेक्स्ट लिखा था इट रेज दैट टेक्स्ट, अगर मैं इसको रीडू करती हूँ कि हमारे पास वो टेक्स्ट जो है वो दोबारा उस तरीके से लिखा हुआ आ सकता है, ठीक है। तो इस तरीके के कंट्रोल्स आपके पास यहाँ से, ये जो ऑप्शन है यहाँ से आप कस्टमाइज करके अपनी मर्जी से देखें। अनडू और रीडू और सेव के ऊपर क्लिक हुआ है तो यही तीन ऑप्शन यहाँ पे शो हो रहे हैं। तो आप को अगर एमएस वर्ड लेट्स सपोज बाद में कमांड अच्छी हो जाती है, आ जाती है, आपको इन ऑप्शंस का अगर पता होता है तो आप उनको यहाँ से क्लिक करके यहाँ पे ऐड करते हैं। देखिए यहाँ पे मैं ड्रॉ टेबल का ऐड कर रही हूँ, ठीक है। मैं जिस जिस कमांड के ऊपर यहाँ पे क्लिक करती जाऊंगी वो यहाँ क्विक एक्सेस टूल बार में ऐड होती जाएगी। ये तमाम ऑप्शन हमारे पास इस रिबन के अंदर भी मौजूद हैं, लेकिन दिस प्रोवाइड्स यू क्विक एक्सेस, दैट इज व्हाई इट इज नाउन एज क्विक एक्सेस टूल बार। So next one is रिबन। रिबन के अंदर अच्छा क्या होता है कि रिबन जो मेरे पास ये तमाम टूल्स हैं वो रिबन एरिया कहलाते हैं। इसकी हम डिटेल पढ़ लेते हैं, फिर हम दोबारा से प्रैक्टिकल विंडो के ऊपर स्विच हो जाएंगे। रिबन के ऊपर आपके पास डिफरेंट ग्रुप्स होते हैं। वो ग्रुप्स जो हैं वो डिफरेंट टैब्स में आगे डिवाइडेड होते हैं। हर टैब एक पर्टिकुलर कंट्रोल्स के ऊपर कंसिस्ट करती है, ठीक है। उनको यूज करते हुए आप अपनी डॉक्यूमेंट के अंदर कॉन्टेंट वगैरह ऐड कर सकते हैं। तो डिफरेंट टैब्स हैं आपके पास, 9 टैब्स हैं। दीज आर फाइल, होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, रेफरेंस, मेलिंग, रिव्यू, व्यू एंड एड इन्स। तो हम देख लेते हैं कि क्या वाकई यही टैब्स यहाँ पे आपको ये जो अभी मैंने सॉफ्टवेयर ओपन किया हुआ दैट इज पावर पॉइंट, इसमें भी वही टैब्स नजर आ रही है, लेकिन क्योंकि हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को पढ़ रहे हैं तो हम उसी को कंटिन्यू करेंगे। अच्छा, रिबन के अंदर अब आप देखिए कितनी टैब्स हैं। फाइल, होम, इंसर्ट, डिजाइन, पेज लेआउट, reference, mailing, review and view. Please concentrate upon the position of pointer जहाँ पे मैं क्लिक कर रही हूँ, आप वहाँ पे देखें, ठीक है। ये आपके पास तमाम टैब्स। अब देखिए मैंने फाइल को क्लिक किया तो मेरे पास डिफरेंट ऑप्शन यहाँ से लेट्स सपोज इनेबल हो रहे हैं। मैं होम को क्लिक करती हूँ तो मेरे पास डिफरेंट कंट्रोल ऑफ रिबन जो है वो ओपन हो जाता है। इंसर्ट पे हमारे पास डिफरेंट कंट्रोल्स शो हो रहे हैं। इसी तरीके से डिजाइन के ऊपर मेरे पास डिफरेंट कंट्रोल्स आ रहे हैं, पेज लेआउट के ऊपर। तो हम इन टैब्स को यूज करते हुए अपनी एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट को के अंदर जो लिखा हुआ टेक्स्ट है उसको एडिट कर सकते हैं। Okay, next topic is what is the next topic, that's it from ribbon। तो आगे आपके पास वही टैब्स शो हो रही हैं जिनको अभी हमने देखा है, होम, इंसर्ट, पेज, ये तमाम आपके पास टैब्स हैं। एंड दीज आर द ग्रुप्स। अब ये ग्रुप्स कैसे होते हैं, ठीक है, इसको भी हम देख लेते हैं। जैसे मैंने होम टैब के ऊपर क्लिक किया तो आप लोगों को ये हल्की सी पार्टीशन नजर आ रही होगी, ये एक पार्टीशन है, फिर आपको एक ये पार्टीशन नजर आ रही होगी, फिर इस तरीके से ये पार्टीशन भी नजर आ रही होगी। तो दीज आर ग्रुप्स। ये स्टाइल्स का ग्रुप है, ये पैराग्राफ का ग्रुप है, ये फॉन्ट का ग्रुप है। इसी तरीके से अगर आप लोग देखें तो यहाँ पे मैं इंसर्ट के ऊपर क्लिक करती हूँ, ठीक है। ये तमाम हमारे पास टैब्स कहलाती हैं। ये क्या है, पेज लेआउट, डिजाइन, इंसर्ट, होम, ये टैब्स कहलाती है। और इस पूरे को कंबाइन अगर हम कहना चाहें तो दैट वुड बी कॉल्ड रिबन। तो इंसर्ट टैब के ऊपर अगर आप अब देखें तो ये पेजेस का ग्रुप है, ये टेबल्स का ग्रुप है, ये इलस्ट्रेशन का ग्रुप है, एड-इन्स का ग्रुप है, मीडिया का ग्रुप है, लिंक्स, कमेंट्स, हेडर, फुटर, टेक्स्ट, सिंबल्स। तो ये ग्रुप्स जो हैं वो हमारे पास इसके अंदर भी वर्ड को डिफाइन करते हैं, डिवाइड करते हैं कंट्रोल्स को। कि अगर आपने लेट्स सपोज टेबल्स ऐड करने हैं तो आप टेबल वाले ग्रुप से जो है वो जाके इंसर्ट कर सकते हैं। आपने पेज नंबर के ऊपर कमेंट्स वगैरह ऐड करने हैं, हेडर, फुटर ऐड करना है तो आप इस ग्रुप को क्लिक करेंगे इंसर्ट टैब के ऊपर जाके, ठीक है। तो दीज आर कॉल्ड बेसिकली ग्रुप्स। तो हमारे पास ये वाली स्लाइड तो यहाँ पे कवर हो जाती है। हमारे पास टैब्स कहलाती हैं एंड द पार्टीशन बिटवीन दीज टैब्स। जब हम किसी टैब को ओपन करते हैं तो जो स्मॉल फॉर्म में टेक्स्ट, यहाँ पे भी आप लोगों को ये पार्टीशन नजर आ रही है। क्लिप बोर्ड है, स्लाइड्स, फॉन्ट, पैराग्राफ। ये पैराग्राफ से रिलेटेड मतलब जितने कंट्रोल्स हैं वो इस पूरे ग्रुप के अंदर आएंगे। तो बेसिकली ग्रुप से इस चीज को डिफाइन कर रहे होते हैं। सो लेट्स मूव टू दी
नेक्स्ट टॉपिक दैट इज हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल स्क्रॉल बार। हॉरिजॉन्टली हमारे पास अगर होगा तो हम डॉक्यूमेंट को किस तरीके से मूव करेंगे। यहाँ पे ये वाला जो कंट्रोल होता है आपके पास, जैसे हमने डॉक्यूमेंट का साइज इंक्रीज किया था, तो यहाँ पे नीचे जो आप लोगों को ये वाला जो बार नजर आएगी दैट इज योर हॉरिजॉन्टल, और यहाँ पे ये जो साइड पे स्क्रॉल बार नजर आ रही है दैट इज योर वर्टिकल स्क्रॉल बार, जिससे हम डॉक्यूमेंट को अप साइड डाउनवर्ड्स मूव कर सकते हैं, और इससे हम हॉरिजॉन्टल से डॉक्यूमेंट को लेफ्ट राइट मूव कर सकते हैं अगर आपकी डॉक्यूमेंट का साइज बड़ा है। ठीक है, ओके द नेक्स्ट वन इज स्टेटस बार। स्टेटस बार के बारे में मैंने आपको पहले ही ये बताया है कि स्टेटस बार में हमारे पास क्या होता है, यू हैव द स्टेटस ऑफ योर डॉक्यूमेंट, जिसके अंदर ये पता लग रहा होता है कि कितने हमारे पास नंबर ऑफ पेजेस हैं और कितने हमारे पास जो है वो वर्ड्स, कितने वर्ड्स हमने बेसिकली इस डॉक्यूमेंट के अंदर लिखे हुए हैं। तो हमने यहाँ पे देखा था कि एम एस वर्ड में स्टेटस बार कहाँ पे होती है, हमारे पास बॉटम में होती है ऑन दी लेफ्ट साइड। तो ये दिस इज योर स्टेटस बार वे यू कैन सी number of pages that your document contains, the number of word that your document contains. So this is the status bar that indicates the status of pages and number of words the documents has. So this is status bar for you. इसी तरीके से status bar के अंदर हमारे पास zoom in and zoom out का option भी होता है, यहाँ से हम document को zoom in and zoom out कर सकते हैं। तो ये थे हमारे पास बेसिक कंट्रोल ऑफ एम एस वर्ड। थोड़ा सा हम इसको रिवाइज कर लेते हैं, मैं स्लाइड्स के ऊपर नहीं जाती, मैं यहीं से रिवाइज कर लेती हूँ कि हमने एम एस वर्ड को ओपन किया, ये हमारे पास कोई एक्सेस टूल बार कहलाती है, ये हमारे पास टाइटल बार कहलाती है, ये सारा एरिया हमारे पास रिबन कहलाता है जिसके अंदर मल्टीपल टैब्स हैं। हाउ मेनी टैब्स वी हैव स्टडीड सो फार, हमने देखा कि 9 किस्म की टैब्स हैं इसके अंदर। हर टैब के अंदर मल्टीपल ग्रुप्स बने हुए हैं जो कि मल्टीपल ग्रुप्स के अपने अलग अलग कंट्रोल्स हैं। दिस इज योर डॉक्यूमेंट एरिया ब्लैंक वेयर यू कैन राइट द टेक्स्ट ऑफ योर ओन चॉइस। ये आपके पास वर्टिकल स्क्रॉल बार है, यहाँ पे आपके पास हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार आती है दैट इज यूज्ड टू मूव डॉक्यूमेंट फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, और वर्टिकल से हम अपसाइड डाउनवर्ड मूव करते हैं। दिस इज योर स्टेटस बार विच इंडिकेट्स द नंबर ऑफ पेजेस दैट योर डॉक्यूमेंट हैज एंड द नंबर ऑफ वर्ड योर डॉक्यूमेंट contains। Similarly it also shows the zoom in and zoom out control, जिससे हम डॉक्यूमेंट का साइज इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं। So that's all for today. You will inshallah learn in next class like how to add text in your document, हम उसको text add करके उसके ऊपर किस तरीके से काम कर सकते हैं। So here comes your home task of today's lecture, define word processing। word processing क्या है, what is MS Word, you have your book with you। हम वर्ड प्रोसेसिंग को ही एम एस वर्ड कहते हैं, लेकिन हम उसको थोड़ी सी दोनों की डेफिनेशन को डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो आप लोगों ने आज के लेक्चर से भी सीख लिया होगा और आपकी बुक में भी ये कंटेंट मौजूद है। डू रीड द कंटेंट फ्रॉम योर बुक एंड ऑल्सो प्रैक्टिस इफ़ यू हैव योर सिस्टम विद यू। आपके पास अगर घर में सिस्टम है तो अगर आपने आज का लेक्चर देखा है यू मस्ट प्रैक्टिस कि आज एम एस वर्ड सिंपली खोल के उसके कंट्रोल्स वगैरह देख लें, उनके बीच में टैब्स के बीच में स्विचिंग वगैरह करें, लाइक हाउ टू स्विच अमंग tabs among different tabs, ताकि आप लोगों को idea हो, because in the next class you will learn how to practically perform some work using MS Word. So that's all for today. Do not forget to attempt your assignment and submit within 24 hours in your subject group, because it will be marked against your attendance, otherwise you will be marked absent. So that's all for today. Have a good day, stay blessed, and Allah Hafiz.